Now you can't insult me like this, man. No, you can't say this. You can't do all this. Don't see chemistry, sir. They're not letting me sing it. ये गाना आज की रात पार्टी हुई है. क्या है? आज की पार्टी. ओके सलमान भाई, बात करें आपकी पिक्चर इस बजरंगी भाईजान की. इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज लिए हुए है. सो हम कह सकते हैं कि क्या आपका नज़रिया काफ़ी फिलॉसफिक होता जा रहा है? अबे या फिर ये कौन सा क्वेश्चन है यार, बोरिंग सा. इंटरटेनिंग फिल्म है, हमारी फिल्म को डुबाओ मत तुम. सोशल मैसेज और ऐसा लग रहा है कि कोई हम कुछ पकाओ कोई फिल्म बना रहे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल नोबल फिल्म यार. वो जो हमारा जो एक आता है अभी हर फिल्म के अंदर रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन होता है ना, इसमें भी वही सब है. लेकिन इसका बैकड्रॉप जो है वो बहुत लार्जर देन लाइफ है और पॉजिटिविटी बहुत है इस फिल्म के अंदर. समझे आप? आई मीन बजरंगी भाईजान ही आपको एकता की फीलिंग देता है कि नहीं देता है ना? नहीं देता आपको? Hi, Preetham sir, this is Faridoon from Bollywood Hangama. So actually, Mr. Khan recently told me in an interview that he is dying to sing a song for Bajrangi Bhaijaan, but you haven't given the entire album to him. So could you please tell us that which song Mr. Khan will be singing? This is the song. You're singing? Are you singing? This is the song and the selfie song also. You'll be singing that? So when will that be out, sir? They're not letting me sing it. No, I was ready to go to Karjat also. He was not allowing me to go. How is he ready to go to Karjat? He's not given us the final tracks. And he's going to come there and teach me the song and make me sing it before giving us our master. ये सब दादा लोग हैं इन लोग. Mr. Khan, sir, straight up here. This question is, of course, taking a cue from what you said a few minutes back, that the title of the film gives a sense of unity, but there are certain religious groups which are kind of opposing it. They are not happy with it. Does it bother you? No, it doesn't bother me. No, it doesn't. No, it doesn't bother me at all, because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know, that every religion respects the other person's religion. आप देखो बांद्रा के अंदर, बम्बई के अंदर, आप जहाँ पे भी जाओगे, मौलानास will be sitting at every गणेश विसर्जन. हर गणपति के ऊपर, people will be there. Understand? So today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this, because every religion preaches only one thing: to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. है ना? So who are these people who are protesting? So then how can I don't think anyone can protest on this. If you're saying religious groups are doing that, there's no chance. Don't malign them. Don't malign them, please. No, you can't say this. You can't do all this. Yeah, please, yeah. ऐसा लगता है आपको कि कोई religious group कुछ बोलेगा on such on peace? On peace? They have a problem with the title. Islam means peace. Islam means peace. So what are they protesting against? That a Hindu name cannot be combined with the Muslim endowment. Is there any logic in that? So should we even spend 2 seconds discussing that? The whole point of the title is that this is the greatness of India. So we should not even waste time on, fringe elements. I don't believe. ये गलत information लेके आए. That's what I'm saying. They're definitely not religious organizations. They're just some. Tell me one person who believes that this could be a religious thing, who's taking objection. No. Does anyone? Raise your hand. Raise your hand. Are you saying that any religious group would go against peace, against harmony, as in Hindu, Muslim, bhai, living together? तो इसको तो negate कर दिया इन्होंने. Correct? You guys have launched a song today, and there was a song that was launched last time, which was a Qawwali. Where has that reached, where the Sabri brothers are opposing that over copyright issues? Not the Sabri brothers. They've
deceased. These are somebody from their family, and if there is any issue, this is a traditional qawwali which was made famous by the Sabri brothers, the late Sabri brothers, and this is a qawwali that both Salman and I have heard since our childhood and loved, and this is our rendition of that qawwali. And if there is any legality issue, I'm sure we'll look after that. I don't think, Kabir, I don't think. I mean, Sabri brothers, you know, this qawwali we've heard since we were children. And I think it's the most beautiful qawwali. And I don't think the people who sung this qawwali and written this qawwali, their family people will do something like this. No, they'll want it to go on and on and on and on. I don't think so. I don't believe what you're saying, at all. Yeah. I mean, it's like you saying that later on my grandchildren, you know, will disrespect being human. Yeah, Salman. सलमान सलमान भाई, आपकी और करीना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा पसंद किया जाता है, तो इस बार केमिस्ट्री सर, इस बार नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह आपने रिक्रिएट किया? सर, देयर इज नो केमिस्ट्री ओनली सर, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग हर बहन जी इन द फिल्म. ओके. हाय कबीर, सलमान. अरे सर पूछो ना, क्या पूछ रहे थे? पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे? इस बार आपने नई ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किस तरह से रिक्रिएट किया? सर, जब मैं परफॉर्म करता था ना, तो मैं भूल जाता था कि उनके नाम के आगे खान लगा है. उनके नाम के आगे खान है. जैसे शॉट खत्म होता था तो वो खान वापस से लगा देता था मैं. सलमान, करीना जब आपको रोमांस कर रही थी, करीना को किसकी याद आ रही थी? Now you can't insult me like this, ma'am. Now you can't do this. हमारे गाने के फंक्शन, मेरी पार्टी, आज की पार्टी मेरी तरफ से, और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं. ये क्या हुआ आपको? किसकी याद आ रही थी मतलब? चलो, मेरे सामने होंगी, मेरी ही याद आएगी, और किसकी याद आएगी? आपको किसकी आ रही थी? मुझे एक्चुअली सैफ की याद, सैफ की याद आ रही थी. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो. अभी 1 वीक पहले ही मैं कश्मीर जाकर आई हूँ, और जो हमारा ड्राइवर था वो स्पेशली मुझे पालगांव जब हम गए, वो हमें वहाँ ले गया कि यहाँ पर भाईजान की शूटिंग हुई है. उस दरगाह में ले गए, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है. तो क्या कहेंगे आप? और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सलमान के फ़ैन हैं. हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट ये एक मेन रीज़न था कि हम चाहते थे कि एक हम लंबा 40 दिन का शेड्यूल कश्मीर में करें, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री से लोग कहते हैं नहीं कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम है. कुछ स्पोरेडिक इंसिडेंट्स के हेडलाइंस पढ़ के समझते हैं कि कश्मीर जल रहा है अभी तक. जब तक हम वापस नहीं जाएंगे, वो नॉर्मल सी वापस नहीं आएगी, तो एक सलमान खान वहाँ जाके 40 दिन शूट कर सकते हैं, देन इट्स अ सिग्नल दैट कोई भी शूट कर सकता है वहाँ. एंड आई होप इस शूटिंग के बाद और फिल्में जाएं, फिल्म देखने के बाद और प्रोड्यूसर्स वहाँ पे जाएं, और स्टार्स वहाँ पे जाएं, क्योंकि जिस किस्म का सपोर्ट कश्मीर के लोगों ने हमें दिया वो हमें और कहीं नहीं मिला था. इट वाज अनबिलीवेबल. सलमान, आप आई थिंक गए ही हम वहाँ पे इसलिए थे ताकि वहाँ का जो एक टूरिज़्म खुल जाए. एक जो एक मिथ है कश्मीर के बारे में, जो एक बोला जाता है कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की है बताने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, लेकिन वो उसने एक बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है कश्मीर के ऊपर. आपने बोला कि बाढ़ हो रही है, वहाँ पर शूट आउट्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह. तो वो एक आध जगह पर वो पिछली बार हुआ था, लेकिन उससे टूरिज़्म बहुत इफ़ेक्ट हुआ है. तो जो आप अच्छाई करने गए वो बैकफायर हुआ है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी. तो हम गए थे इसलिए, ये हमको भी ऐसा लगा था कि क्या होगा वहाँ पर, लेकिन जब वहाँ पर गए थे तो बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं. आई थिंक मरने से आई थिंक पहले एक 8-10 बार तो कश्मीर जाना चाहिए. आपको 15.
मेरा सवाल था कि आपके दोस्त बहुत ही जल्द जेल से आने वाले हैं, तो क्या आप एक्साइटेड हैं और आपकी तरफ से पार्टी होने वाली है? संजू की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, संजू बाबा। अभी बाहर निकलने वाले हैं? कुछ आई थिंक दिसंबर में शायद वो आ जाएंगे। फॉर गुड? क्या खबर रखते हो भाई? अभी उनमें थोड़ा सा टाइम है, इतने इम्पेशेंट मत होइए आप। वो अगर आएंगे तो परोल या फरलो पे ही आ सकते हैं। उनका थोड़ा सा आई थिंक आगे तक का है। बट व्हेन ही कम्स आउट ही इज गोइंग टू बी क्लीन, ही इज गोइंग टू बी क्लियर एंड ही इज गोइंग टू बी अ फ्री मैन। दैट्स व्हाट वी वांट हिम टू बी। कबीर जी And obviously once he's out, he's a free man. Obviously I'll party with him. कबीर जी एक सवाल आपसे। But if he comes बीच में on parole or anything, no way. हाँ, कबीर जी एक सवाल आपसे। स्क्रिप्ट आपकी फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी होती है, लेकिन ये फिल्म क्या भारत और पाक के रिश्तों को ज़्यादा मिठास लाएगी या कड़वाहट भरेगी? नहीं, आई थिंक उतना तो ट्रेलर से समझ में आ जाता है कि हमारी क्या कोशिश है और क्या इंटेंट है फिल्म की। लेकिन एज अ सेड ये एक बहुत वार्म ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टोरी है। इंडो पाकिस्तान जो भी एक है वो सब बैकड्रॉप है। आई थिंक अल्टीमेटली ऑडियंस को वो जो दो कैरेक्टर्स हैं, छोटी बच्ची है और बजरंगी का जो कैरेक्टर है, उनकी कहानी फॉलो करनी पड़ेगी। उनके साथ एक बारी वो अटैच हो जाएं, फिर जो सारा बैकड्रॉप है वो इल कम एज पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। लेकिन अमूमन ऐसा हुआ है कि इस तरह की कहानियों में वहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव थिंग। जी, उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक अननेसेसरी स्टीरियोटाइपिंग और जो अलग मुल्कों को अननेसेसरी वल्गर तरीके से उनकी जो बैशिंग होती है उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरी किसी फिल्म में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जैसे हम कह ही रहे हैं कि अगर आपको बैशिंग देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं, नफ़रत देखनी है तो ये फिल्म आपके लायक है नहीं। और अपने दोस्तों यारों को भी बोल दो कि अगर नेगेटिविटी देखनी है तो इस फिल्म के थिएटर के इर्द गिर्द भी ना घूमना, क्योंकि मीलों तक आपको वो दिखाई नहीं देगी। सलमान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इंडियन आइडल पे प्रमोट करने गए थे, फिर कपिल के शो पर भी गए, लेकिन करीना नहीं दिखाई दे रही है प्रमोशंस पे। आज भी वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ट्रेलर लॉन्च पे दिखी थी। तो क्या वजह है करीना फिल्म को प्रमोट करने नहीं कर रही? आई थिंक करीना इस फिल्म से कुछ रूठी सी हैं। करीना लंदन में है ऑलरेडी। इस फिल्म की सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रही हैं। इस फिल्म के ये फिल्म गोल्डन जुबली हो गई है, ये करोड़ों के अंदर निकल गई हैं। 100 का ब्रैकेट तोड़ दिया है, 100 का 200 का तोड़ दिया है। तो वो लंदन में है, अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ एंजॉय कर रही हैं। ऑलरेडी उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया है एंड आई एम ग्लैड शी इज डूइंग दैट। सलमान, छोटी बिटिया के बारे में भी जानना चाहेंगे। हर्षाली जो है उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, तो हर्षाली के साथ आपका कैसा? हर्षाली को तो आप एक काम करो, सिर्फ पर्दे पे ही देखो भाई। बिकॉज आई थिंक हर्षाली इज, अगर फिल्म मैं तो उसको कंधे पे उठा के ले चल रहा हूँ थ्रू आउट द फिल्म, लेकिन एक्चुअली वो हमको उठाए ले चल रही है। सलमान, आपकी एक फिल्म, सलमान खान फिल्म्स की एक फिल्म बजरंगी भाईजान तो रिलीज़ हो रही है। आपने हाल ही में हीरो का पोस्टर भी आउट किया था। 4 सितंबर को फिल्म आ रही है। उसके साथ ही कैटरीना की फिल्म फैंटम भी आ रही है और फिल्म के पोस्टर पे अपनी ही फिल्में हैं सर। सलमान, हाल ही में आपने कहा था कि आप अरेंज मैरिज के लिए भी ओपन हो, तो लड़की की कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप देख रहे हो अगर अरेंज मैरिज के लिए? वो सब क्वालिटीज़ जो आप में हो नहीं होनी चाहिए। Thank you, ladies and gentlemen. One last photo op, I think. Last. नहीं सर, क्योंकि अच्छा, क्योंकि मैरिज कैंसिल, लव इज बैक ऑन। मुझे याद आया अर्पिता बहन की शादी थी, तो वहाँ पे भाई ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक गाना गवाऊंगा। तो मैं सोचा था यार 3 गाने आगे 4 गाने लगता मेरा चांस है ही नहीं। और मैं इनको मैसेज करता था, ये सिर्फ स्माइल भेजते थे। मैं यार मेरा गाना है या नहीं मुझे बता दो, सिर्फ स्माइल। थैंक यू। Thank you Salman sir, thank you Kabir sir, thank you Amar sir, thank you Shabir, thank you buddy, thank you Mika Baji and thank you बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए। I'll just remove the mic, really appreciate that.